Assalamu alaikum. Today the topic which we are going to discuss is about reactivity and reactions of alkynes. First of all, moving toward its content, in these slides we will discuss reactivity, the types of reactions. There are three categories of reactions which alkynes undergo. Number one, addition reactions. Number two, oxidation reaction. And number third is polymerization reaction. First of all, about the reactivity of alkynes. Actually, alkynes are unsaturated hydrocarbons. Valency of carbon atom is satisfied through triple bond with the other carbon atoms. In triple bond, one is the sigma bond, while the other two bonds, which are formed due to the side-wise overlapping of orbitals, are pi bonds. Due to the presence of triple bonds between two carbon atoms, the electron density between carbon atoms increases and bond length decreases. That's why alkynes are more reactive than alkanes, but less reactive than alkenes. In short form, we can say that in alkynes, carbon-carbon triple bond is present, and in triple bond, one bond is sigma bond, and the other two bonds are pi bond. We know that pi bonds are formed due to the side-wise overlapping of orbitals. Actually, there are total three bonds between two carbon atoms. It means between two carbon atoms, electron density is very high, due to which both of the carbon atoms come closer to each other. They attract each other. Their bond length decreases. Due to the attraction between two carbon atoms, their reactivity decreases as compared to alkenes. Alkenes की निस्बत कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन alkanes की निस्बत ज़्यादा रिएक्टिव हैं. Moving toward the reactions of alkynes undergo three types of reactions: addition reaction, oxidation reaction, and polymerization reaction. First of all, addition reaction. There are many types of addition reactions also. Hydrogenation. Number two, addition of hydrogen halides, addition of water, halogenation, and addition of ammonia, as well as addition of hydrogen cyanide. First of all, hydrogenation. We know that hydrogenation means addition of hydrogen. और क्योंकि हम alkynes की reaction पढ़ रहे हैं, तो it means addition of hydrogen on alkynes. किसकी मौजूदगी में? निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में at the temperature range between 200 to 300 degrees Celsius. Propyne. When H2 molecule or two atoms of hydrogen are added to propyne, this triple bond can be converted into double bond. एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे ऐड हो गया, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे ऐड हो गया. ये सेंटर वाला कार्बन पहले इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, एक हाइड्रोजन ऐड होने के बाद ये CH बन गया, और टर्मिनल वाला कार्बन जिसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन था, ये क्या बन चुका है? CH2. और मजीद अगर इस प्रोपीन पे हम मजीद H2 की एडिशन करें तो ये प्रोपेन में कन्वर्ट हो सकता है. Number two, addition of hydrogen halides. Hydrogen halides mean addition of HBr, HCl, HF, HI, etc. So, ethyne, when add HBr, hydrogen goes to one carbon and bromo group adds to the other carbon. ये कार्बन पहले देखे CH है, जबकि प्रोडक्ट में जाकर ये CH2 बन चुका है, जबकि टर्मिनल वाला सेकंड वाला कार्बन CH है और अब ये CHBr हो चुका है. इट मींस कि एक एटम की एक कार्बन पे एडिशन हो चुकी है और दूसरे एटम की दूसरे कार्बन पे एडिशन हो चुकी है. अल्काइन्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्कीन्स. और अगर इन अल्कीन्स में मैं दोबारा से HBr की एडिशन करना चाहूँ, तो क्योंकि ये अल्कीन्स बन चुके हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स हैं, तो यहाँ पे मार्कोनिकव रूल को ओबे करेंगे. बट क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ अल्काइन्स की एडिशन देखी हाइड्रोजन हेलाइड्स की, तो यहाँ पे हमने आर्बिट्रेरली हमारे पास इंडिविजुअली हम लगा सकते हैं किसी भी कार्बन पे हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पे ब्रोमो को. नेक्स्ट, एडिशन ऑफ वाटर ऑन अल्काइन्स. इथाइन पे वाटर की एडिशन, वी नो वाटर फार्मूला HOH और H2O. एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन चला जाएगा और जबकि दूसरे कार्बन पे दूसरा OH ग्रुप.
पहले देखें CH है और ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, CH2 में, जबकि लास्ट वाला कार्बन CH है और इसके ऊपर क्या ऐड हो चुका है, OH। इट मींस कि एक कार्बन पे हाइड्रोजन जबकि दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप की एडिशन हो चुकी है। ये जो आपके पास कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल। इन विनाइल अल्कोहल रीअरेंजमेंट टेक प्लेस विद इन अ मॉलिक्यूल। इसी एक विनाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल कंपाउंड के अंदर रीअरेंजमेंट होती है एटम्स की। बाहर से कोई एटम नहीं आता, ना यहाँ का एटम कहीं पे जाता है, बल्कि इसके अपने ही एटम्स एक दूसरे के साथ रीअरेंज होते हैं और रीअरेंजमेंट के रिजल्ट में आपके पास एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, CH3CHO. This is acetaldehyde. It means rearrangement take place between vinyl alcohol and acetaldehyde. Next, halogenation. As the name is indicating, addition of halogens. Actually, addition of halogens take place on alkynes in the presence of carbon tetrachloride. इथाइन पे हमने Br2 की एडिशन करनी है। सिंपल एडिशन हुई है, एक कार्बन पे एक ब्रोमो ग्रुप चला गया, दूसरे कार्बन पे दूसरा ब्रोमो ग्रुप। अगर देखा जाए तो ये ट्रांसपोजिशन में मौजूद है। ट्रिपल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। और अगर फर्दर हम इस पे एडिशन करें Br2 की या Cl2 की या कोई भी हैलोजन सेकेंड स्टेप में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। पहले आपके पास इस कंपाउंड में 2 ब्रोमो ग्रुप थे और अब आपके पास 4 ब्रोमो ग्रुप आ चुके हैं। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड। इथाइन पे NH3 की एडिशन करते हैं। एक्चुअली 2 हाइड्रोजन फर्स्ट वाले कार्बन पे और सेकंड वाले कार्बन पे एक नाइट्रोजन की एडिशन होती है और आपके पास मिथाइल, CH3 इज द नेम ऑफ CH3 इज मिथाइल एंड CN को हम बोलते हैं नाइट्राइल व्हेन इट इज अटैच्ड टू अल्काइल ग्रुप। सो द रिजल्टेंट कंपाउंड इज मिथाइल नाइट्राइल अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सेकेंड पे एडिशन देखें, इथाइन पे जब HCN की एडिशन करते हैं, बिल्कुल सिंपल एडिशन हो गया। एक कार्बन पे हाइड्रोजन ने ऐड होना है जबकि दूसरे कार्बन पे सियानो ग्रुप ने, CN ग्रुप ने ऐड हुआ। पहले देखें CH है और यहाँ पे ये CH2 की फॉर्मेशन हो गई। लास्ट वाले कार्बन को देखिए, ये CH है और जबकि इसके साथ CN ग्रुप ऐड हो चुका है। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हम एक्राइलो नाइट्राइल दैट कंटेन डबल बॉन्ड इन अल्काइल ग्रुप्स। सेकेंड कैटेगरी की रिएक्शन है आपके पास अल्काइंस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और 2 तरह के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, हाइड्रोक्सिलेशन एंड कंबस्शन। Hydroxylation take place in the presence of a reagent which is called Bayer's reagent. What is Bayer reagent? Actually 1% alkaline KMnO4 when treated with cold water and in the presence of oxygen, the resultant reagent is called Bayer's reagent. किसी भी कंपाउंड में अनसेचुरेशन फाइंड करने के लिए हम बेयर्स रिएजेंट को इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल हो तो उसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है। रिजल्टेंट जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा दैट इज ग्लायोक्सिल, और उसकी फर्दर अगर ऑक्सीडेशन करें तो ऑक्सैलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। बहुत गौर से देखना है। इथाइन पे आज हम एडिशन कर रहे हैं KMnO4 की इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। इस C ट्रिपल बॉन्ड C इथाइन के ऊपर 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की एडिशन हो जाती है। अगर फर्दर इसमें से 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है, ये जो आपके पास कंपाउंड नजर आ रहा है, दिस इज ग्लायोक्सिल। Glyoxal की further oxidation करें in the presence of oxygen and KMnO4, it will be converted into oxalic acid, and the formula of oxalic acid is COOH, COOH, or we can write it COOH twice. Next is combustion reaction, and we know that burning of hydrocarbons in the presence of oxygen is called combustion, and it will produce carbon dioxide, heat, and water. For polymerization reaction, you can watch my Zoom lecture. Thank you.